So good morning, dear students. Now we are going to be start a new section of second unit that is called slope and deflection. And in this part, we are more interested to find the slope and deflection at different are required place where we need to find these two parameters where the load when the load is acting over the beam. These two parameters are important for designing the beam because if the more deflection or is there, so the chances of failure of the beam is more. So we have to take care of these two parameters, these two important parameters before designing the beam structure. So let's see the introduction. What is the deflection and what is the slope? So dear students, this is a left side beam where you can see that a simply supported beam is there and one point load is acting P over here. Due to this load P, now the beam is deflected. This is the new position of the beam or deflected. So this is make a curve that is called an elastic curve. Elastic because when you remove this load, it is the region, it's the original. So this is elastic curve. So this beam, original position of the beam, this line, this mid line, so the neutral axis of that uh, neutral filament or neutral axis of it. And this is two line which is shown in the elastic curve. This is a neutral axis, the neutral filament of this beam. Neutral axis you can also. So what is the deflection exactly? Deflection is a vertical displacement of the beam um, from the original neutral axis to the neutral axis of deformed beam. So this one is the original neutral axis, this mid one, and this is a सर deformed one. Up, even deformed one. सर Hello. एक्सक्यूज सर सर आपकी थोड़ी वॉइस थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आ रही है सर थोड़ा सा तेज बोलिएगा So here, what is the deformation? Deformation measure from original neutral. This is the original neutral axis, and this is the deformed neutral axis. So this vertical displacement between both. This is called the displacement, and displacement y, and it can we can say this is deflection of the beam. So that deflection, vertical deflection, it is called the deflection of the beam. So dear student, you can say that is called deflection. So up and what is the slope? Any point. Suppose you want this point, or this point, or any point you can. If you draw a tangent line from this point, suppose this. So the what angle it makes, this is called the slope. And this at any point you can find the slope. This is suppose you consider this point. So if you draw the tangent in this way, so what angle it makes for the slope, it's measured by the in form of angle. So dear student, you can say that suppose this is a maximum deflection point, maximum deflection is here, and here in this point if you draw a tangent, so there is slope. So here the slope is 0 because both line and that point are parallel together. So slope is 0 in this. You are understanding what is the deflection, what is the slope. Slope means that is the angle made by the tangent on that point where you are going to find the slope. This angle is called the slope. Any point you can take it. Any point consider. So in question they will ask you find the slope and deflection on this point. They will mention those point there. So simply there. So this is called slope and deflection of the beam. And some important of beam deflection. So before designing any beam, you have to take care of these things. The maximum deflection must be less or equal to the length of the beam upon 300. ये होना चाहिए. If it is more than that, then we have to be again redesign the
So this is about the slope and deflection of the beam. So now we have interested to here to define the elastic beam theory. Elastic beam theory. Basically, it is also called the differential equation of beam or elastic beam theory. So one equation we will obtain by applying this theory, that will be called differential equation of beam. So in this, you can initially we can see the here you can see here. This is a beam, one original beam, and we have considered this section. We have taken a small section of which जिसकी width है कितनी है dx, ये ds या गौर से देखिए, and that point is at x distance from this circle. Then we applied a moment. Right. Okay. So it will be deformed like this. You can see here. You can see this is a deform. This is which one is called. This is a neutral axis. Okay. So suppose this is this element what we have taken, which width is dx, and now when it is deformed, it will be intersect the line of deformation. It is intersect at any point, and it's make what is the angle of curvature, and this one is called radius of curvature, which is denoted by r, capital R, radius of curvature. And this is the angle of curvature. This is d theta, and this is r. Radius of curvature is r. Understood? The radius of curvature is r. We have taken. In initially, with आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है. अपना आराम से आते हैं. Let's see here, dear student. This is the baseline. Is this one? Try to understand this one. This one, and this is dx. This is a neutral one. We have taken the neutral axis, this thing, and this is a new filament we have taken, which width is ds, and the distance between the neutral axis and the which filament we have taken for design consideration, that is which width is ds, it is located at y distance from the neutral axis. ये देखिए. देन अब इसको डिफॉर्म वाले में देखते हैं. ये ओरिजिनल का क्रॉस सेक्शन है. इस एलिमेंट का ये छोटा वाला जो आपने पहले लिया था, ये ओरिजिनल का है. वी हैव टेकन ऑल द एलिमेंट ओवर हियर. देन डिफॉर्म का लेते हैं. ये देखो डिफॉर्म का ये आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, रेडियस ऑफ. देन एंगल रेडियस, ये दिस एंगल ऑफ कर्वेचर, दिस डी थीटा, दिस इज डी थीटा. देन जैसे ये बेटा यहाँ आइए, अब इसको इसके साथ एनालॉग करिए, इस वाले को. अब डिफॉर्म हुआ तो क्या होगा? दिस इज dx, न्यूट्रल एक्सिस वाला dx है, और ये ds जो आपने कंसीडर किया, जहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे, ये मोमेंट लगा हुआ है जो आपने लिया है. तो पहले देखो, जो पहले ds था, अब यहाँ के ds डैश हो गया है क्योंकि वो डिफॉर्म हुआ है. बट dx को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल फिलामेंट या न्यूट्रल एक्सिस में जो भी पॉइंट्स, जो भी एलिमेंट होगा, वो उसमें स्ट्रेन नहीं होता, बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होता, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो कंसिडर नहीं करें. तो अब आप देख लीजिए कि पहले जो ds था, नाउ ds डैश, और फिर बेटा आपका dx था, तो dx ही रहेगा यहाँ भी. लेकिन आपने ओरिजिनल वाले में जब आओगे, यहाँ पर आप आओगे, इस वाले डायग्राम में, यहाँ जरा देखिए, इनिशियली both ds and dx, initially both ds and dx are equal. ये चीज हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं, when we have
derive the derivation on flexural bending equation. The same concept we have studied is there. जिसमें को समझ में आओ उसको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई होगी तो आगे का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैंने इससे आपको यहाँ से समझा दी। चलिए नेक्स्ट आप चलते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट स्लाइड क्या है। सो जो फाइबर हमने लिया है, दैट फाइबर, जिसका जो फाइबर लिया है हमने एट डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, से हम स्ट्रेन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो व्हाट विल बी द स्ट्रेन ऑन दैट फाइबर विच इज लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको स्ट्रेन का फॉर्मूला आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, तो पहले से ही पता है स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन व्हाट, चेंज ये हो गया डी एस डैश, और चेंज मतलब क्या हो जाएगा, तो चेंज जो माइनस ओरिजिनल, टोटल चेंज इन डायमेंशन हो गया, और दिस इज ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको होप यू आर अंडरस्टूड। चलिए तो पीछे जाना पड़ेगा हमको। हाउ इट इज फ्रॉम आर माइनस फाइव डी थीटा माइनस आर डी थीटा एंड आर डी थीटा, ये कैसे आया। चलिए पीछे चलते हैं तो प्रॉब्लम देखते हैं कैसे आया। इसको फिर से हम सकते हैं समझने की। तो हमने देखा कि स्ट्रेन इन दिस कंसीडर्ड एलिमेंट, दिस वन डी एस वाला, वहाँ पर कितनी स्ट्रेन होगी। हमने बोला कि जो डी एस डैश माइनस ऑफ डी एस, ये है चेंज इन डायमेंशन। फाइनल डायमेंशन इज ds dash, original is ds, become change in dimensions upon the original dimension ds। इसी पे हमको स्ट्रेन निकालना है। अब ds dash को आप क्या लिख सकते हो, ds dash यहाँ क्या है, ds dash मतलब ये वाला, ये देखो गौर से देखो, ये है ds dash, तो मैंने अभी रेड इसको निकालना है। लेकिन आपके पास सिर्फ दो डायमेंशन, एक कौन सी है, देखो जरा, एक है पास डी थीटा, लेकिन अगर आपको ये लेंथ पता चली जाए यहाँ तक, ये वाली तो यहाँ से देखिए आओ देखते यहाँ तक मिले, तो आप इस लेंथ को डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डी एस डैश मिल जाएगा। तो आपको लेंथ गौर से देखेंगे तो पता है, कैसे पता है, द टोटल इज आर, आर कितना है देख लीजिए, आर यहाँ तक है, ये टोटल है आर, ये आर है, ये आर, और ये वाला y है। अगर आप r माइनस वाई लिख देते हैं, r माइनस वाई, तो आपका काम बन गया, r माइनस वाई डी थीटा, ये हो गई डी एस डैश माइनस डी एस अपॉन डी एस। अब डी एस को देखिए, डी एस मतलब ये पुराना ओरिजिनल वाला, लेकिन अब इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, तो आपके पास उसका भी एक जुगाड़ है। ये देखो, तो डी एक्स पहले ही आप मान चुके हो कि किसी भी कंडीशन में इनिशियल डी एक्स चेंज नहीं होगा, कि नहीं तो ये डी एक्स तो हमेशा दोनों पोजीशन में बराबर ही होंगे, वो लिखा भी है। तो इस पोजीशन में डियर स्टूडेंट, देन दिस मैन इज radius of curvature is r, understood, and this angle is d theta, then just multiply the r with d theta, then your dx, understood, the dx will be r d theta, and you already know here in original ds is equal to dx, तो ये बराबर हो जाएगा ds के, understood। So my dear students, now it's become r d theta upon r d theta। अब यही इक्वेशन को उधर लिखी हुई है, ये लिखिए ना, तो यहाँ ये देखो यही वाली इक्वेशन है, ये वाली। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ओपन कर दीजिए, तो r d
थीटा माइनस आर डी, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बाय डी थीटा अपॉन आर थीटा, तो डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस बाय अपॉन आर, वेयर द माइनस साइन शोज दैट इज द डिफ्लेक्शन इन बीम इन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हो रहा है। तो नीचे की तरफ जो भी मूवमेंट होगा वो क्या रहेगा आपका, चलिए अब देखिए जरा गौर से फरमाइए इधर 1/r इक्वल टू माइनस टी अपॉन r, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। अब एक आपको पता है फ्लेक्सुरल बेंडिंग, तो पता है आपको पता होगा m अपॉन i सिग्मा अपॉन y e बाई r, वो वाली तो आपको ऐसा लगता है। तो देखिए सो ये लिखा हुआ है ऊपर, अगर पॉजिटिव है तो क्या नेगेटिव इसलिए आ रहा है। तो अब आप अप्लाई करिए फ्लेक्सुरल बेंडिंग इक्वेशन लगा के, ठीक है। तो अब बताइए, आपको शायद याद है, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, मेरे को पता है आपको याद होगा, m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन पाई ई बाई आर। एक क्वेश्चन आपने डिराइव करी थी और हमने बोला था ये कार्डिक फ्लेक्सुरल बेंडिंग इक्वेशन है, बेंडिंग इक्वेशन which is derived by using the pure bending and pure simple bending और pure bending, ये आपको पता है। तो बेटा आप क्या करते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं, पहला टर्म पहला वाला और इसका दूसरा वाला, हम तो दो काम करें, यहाँ दो की जरूरत है, तो यहाँ पर 1/r निकालते हैं। 1/r अगर आप गौर करेंगे तो वो हो जाएगा m अपॉन ई आई, 1/r, तो ये आपने यहाँ से वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 1/r ई आई। कहाँ से आया ये मैंने साइड में लिखा। तो दिस ई आई को हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, समझ में आ गया होगा, ई आई इज कॉल्ड द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। और एक चीज और आप देखिए स्टूडेंट, आपने उस कर्व रेडियस फार्मूले से क्या निकाला था, dx, तो r d थीटा, dx इक्वल टू r d थीटा। तो हम यहाँ से देखिए, यहाँ से d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r dx। तो 1/r की जगह हमने डायरेक्ट यहाँ से m अपॉन ई आई लिख दिया है। हम स्टेप खा जाते हैं जब जैसे बड़े बड़े क्लासों में पढ़ते हैं तो हम स्टेप खा जाते हैं, पूरी स्टेप नहीं, जैसे यहाँ हुआ है तो कहाँ से हुआ मैं बताता जा रहा हूँ आपने, ये कैसे हुआ, हमने क्या किया, थीटा तो सर आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सर। चलिए फिर से यहाँ से रिपीट कर देते हैं। देखिए ये जो dx इक्वल टू आर डी थीटा आपने सीख लिया पहले, मैंने बता चुका था उस टर्म से। तो यहाँ पर हमको डी थीटा चाहिए, सो रिलेशन बिकम 1/r dx। 1/r की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो न्यू इक्वेशन में भी डी थीटा इक्वल टू m अपॉन ई आई डी एक्स, और ये कहलाता है डी थीटा जो है दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द, ठीक है। यहाँ तक आपको हुआ है। और देखते हैं, और थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ आवाज़ बढ़ाने की, आजकल दिक्कत हो रहा है बच्चों को। तो तो हम अपन आगे बढ़ते हैं। तो एंगल ऑफ, ये देखिए, ये अब थोड़ा सा हम छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस खत्म है, आपको ज़्यादा देर से कम बात नहीं, छोटा सा कॉन्सेप्ट। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल रहा था डी थीटा और आर, तो उस एंगल जो कर्व था, कर्व हुआ था, उसको मैंने मान लिया, क्योंकि उसकी लेंथ डी एल मान ली,
और एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय बीसी का पहले भी लिखा था, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर का पहले भी लिखा था, सब कुछ हो गया। एक्स टाइप कोऑर्डिनेट बना और क्या किया, इसको थोड़ा सा एंगल में ले लिया और इस बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, बी पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब हमने टेंजेंट बी पॉइंट पे और इसको आगे बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे बढ़ा दिया और ऐसे एक सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और ये एंगल मान के नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए गौर से देखिए, हाँ ये वाला अब ये एंगल बना रहा है, ये इंक्लाइन लाइन तो जा रही है जी बना रही है इस एक्स एक्सिस से थीटा क्या हमने क्या किया, इस एक्स एक्सिस से पैरेलल एक में ड्रॉ कर ली जो बी से जा रही है, दैट इज कॉल्ड बी, जो कि यहाँ भी दिख रही है आपको, यहाँ देखिए ये वाली पैरेलल टू एस। तो ये जो एंगल बनाएगा ये नया वाला, देखो जरा कल होगा बराबर एक ही डायरेक्ट एक जगह पर और एक पैरेलल लाइन के हैं और इस इंक्लाइन लाइन पर ही है इससे है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो बराबर इसको यहाँ से ये वाला ई और ये एंगल और ये लेंथ जो बी है बी एक्स ले लिया और इस की रिस्पम क्या हो गया डी वाई। तो नया डायग्राम में याद करो, देखो यू और ठीक है, ड्रॉ करना बस और थोड़ा ढीला हो जाता है यार, तो ये हो जाएगा पी और ये हो गया ई, तो ये एंगल थीटा और बी इज इक्वल टू डी एक्स और वाई की डायरेक्शन में डी वाई, ये हो गया एक स्मॉल में। तो इस ट्राइंगल को यूज करके आपको इस वाले ट्राइंगल को यूज करके हमने लिखा tan थीटा, यहाँ से tan थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, पता है। अब तो tan थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स मिला, उसको क्रिएट कर tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा और डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है यहाँ तक पहले ये देखो ये कहाँ से आया, इस ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल से, इस सत्य वाले ट्राइंगल, तो मैंने यहाँ भी ड्रॉ किया, ये वाला डी एक्स है, ये वाला डी वाई है, tan थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल लगा दिया आपने, इस डी वाई अपॉन डी एक्स और सिंपली इक्वेशन नंबर 2 को आपने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, तो बिकम sec squared theta upon theta and this becomes c square y upon d squared dx, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो मतलब पढ़ ही रहे हो, sec स्क्वायर को आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ट्राइगोनोमेट्री फॉर्मूला होता है, तो कोई सिंपली अब इसको यहाँ ले आया, अब आपने वैल्यू रखी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या सिर्फ तुमने इसकी वैल्यू रखी, ठीक है, मैं और ये ऑब्वियस ऑब्वियसली सेक स्क्वायर थीटा के भी तो बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू यहाँ रखो, जैसे तुमने इसको वैल्यू यहाँ से स्क्वायर की जगह रखी, तो आपका डी थीटा जो है ये डी थीटा इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन सेक स्क्वायर में सबकी वैल्यू
देखिए क्योंकि डी बाई अपॉन डी एक्स क्या है वो आपने निकाला ना tan थीटा थीटा निकालोगे तो स्लोप कहलाएगा। तो डी बाई अपॉन थीटा क्या है स्लोप है। और जो स्लोप है वो कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है स्लोप डिफ्लेक्शन कम होना चाहिए तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए और आपने उसको स्क्वायर कर दिया तो और कम हो जाएगा। जैसे वो और कम हो गया तो आप क्या कर सकते हो कि ये नीचे वाली जो क्वांटिटी है तो हम जीरो के बराबर स्क्वायर मतलब बहुत कम हो जाएगा तो यू कैन तो न्यू रिलेशन ये नीचे वाला टर्म ये वाला जीरो हुआ +1 है तो ये टर्म ये हो जाएगा अपॉन ई आई इक्वल टू डी बाई वाई अपॉन ठीक है। ठीक है ये वैल्यू रख दी यहाँ से। अब आप आइए डी एम अपॉन आई अब यहाँ से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा ये एम अपॉन डी आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर देन एम इज इक्वल टू डी आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूला कहलाता है फॉर बीम एंड ये आपने को फाइंड आउट कर दिया क्लास बीम थ्योरी लगा क्लास बीम थ्योरी को अप्लाई करके यहाँ कॉम्प्लेट तो सर आपको आपका याद साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है सर, क्लियर नहीं आ रहा है सर। तो चलो अभी तो अब इसको करते हैं मैं बता रहे हूँ अभी आ रहा है हेलो यस सर, आ सर रहा है आवाज आ रही है पर सर सर आ रहे हैं ना तो वो उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी आ रहा है हेलो 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 आवाज तो आ रही है सर पर क्या है वो आवाज जो एक और जो आवाज आ रही है उसके चक्कर में सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से आपकी आवाज। कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है मेरे को लग रहा है मेरा कुछ हो रहा है चलो सॉर्ट आउट करते हैं। चलो अभी तो मैंने ये कर दिया एक अच्छा सा वीडियो बना के डाल दी कोशिश करता हूँ ठीक है। सो दिस m इज इक्वल टू ई आई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स बीम डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है होप यू आर अंडरस्टूड। तो नो